السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ الى آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہم اور آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تصویر محمد ہے تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا. تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا. کعبہ ہے فقیروں کا روضہ میرے خواجہ کا. کعبہ ہے فقیروں کا روضہ میرے خواجہ کا. اور جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے. جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے. بڑھتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا. بڑھتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا. اور جنت کی بہاروں کو خاطر میں کیوں لاؤں. جنت کی بہاروں کو خاطر میں کیوں لاؤں. نظروں میں سمایا ہے روضہ میرے خواجہ کا. نظروں میں سمایا ہے روضہ میرے خواجہ کا. حضرات بس چند باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا اور بڑی خوش بختی ہے کہ پیر و مرشد حضور شیر ہندوستان کی موجودگی ہے. تقریر نہیں فیض لینا ہے بس یہی ہے. اس جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ابھی کچھ بات کرتے ہیں اس سے پہلے ایک بات یاد آ رہی ہے وہ پہلے کر دوں دل کرتا ہے. ویسے مضمون جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ کہ حضور خواجہ معین الدین اجمیری ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ ان کے مرید اور بہت خاص مرید خلیفہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے بہت خاص مرید و خلیفہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر سبحان. ایک مرید ہونے آئے حضور بابا فرید کی بارگاہ میں. بولے حضرت مرید کر لیجئے. سمجھو بات حضرت مرید کر لیجئے. بولے ٹھیک ہے مرید کر لیتے ہیں. آپ نے مرید کیا اور جو اس کے اصول ہیں وہ سب یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے اس پر عمل کریں گے سب جب کر چکے تو بولے ایک بات اور ہے. بولے کیا حضرت. بولے یہ بھی وعدہ کر کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. سبحان اللہ. اب ایسا نہیں کہ یہاں سے نکلا تو جو بھی جس کو بھی پائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے. میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اب کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا. ٹھیک ہے. جیسے باپ ایک ہوتا ہے ویسے شیخ بھی ایک ہوتا ہے. یک درگیر یہی پڑھایا جاتا ہے ہمیں محکم کی. ایک دروازے کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو. ٹھیک ہے. تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کسی کے ہاتھ کسی اور کے ہاتھ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار غریب نواز. سبحان اللہ سبحان عرص غریب نواز فیضان غریب نواز فیضان غریب نواز خواجہ کا ہندوستان
ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मजहरी आला हजरत, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, गुलामाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत, पैगामे आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहजादगाने मजहरी आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान तो तवज्जो फरमाए। हज़रत ने फरमाया कि मेरे हाथ में हाथ दिया है, अब किसी के हाथ में हाथ नहीं देना। उसने वादा कर लिया, ठीक है हज़रत आपके हाथ में हाथ दिया, अब किसी के हाथ में हाथ नहीं देंगे। अच्छा, वहां से वादा करके चला गया। नदी के किनारे किनारे जा रहा था, किसी काम से कहीं कोई गरज थी उसके लिए जा रहा था किनारे किनारे। अचानक पैर फिसला और गिर गया पानी में, नदी में गिर गया, डूबने लगा। तो एक बार डुबकी लगाई, ऊपर आया, इतने में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए, बोले हाथ बढ़ा ताकि तुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूं। हजरत खिज़र आए, बोले हाथ बढ़ा ताकि हाथ पकड़ के तेरा बाहर निकाल दूं। तो उसने कहा हाथ तो बढ़ा देता, मगर बाबा फरीद से वादा कर है हाथ तो दे देता, मगर वादा कर आया हूं कि अब किसी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। दे चुका हाथ। हजरत खिज़र मुस्कुराए, बोले अरे डूब के मर जाएगा, डूब जाएगा तू, पानी में डूब रहा है, तू कह रहा हाथ नहीं देंगे। तब वो कह रहा है कि हजरत क्या बाबा जी को ये नहीं मालूम था कि मैं डूब जाऊंगा? इन्होंने बताया डूबेगा तो दे देना। हाय हाय, बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? खबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? गुलाम बनो तो ऐसे बनो, बनो तो ऐसे बनो, समझ रहे बात को? ऐसे बनो कि बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? ये फिक्र मत करो कि इधर से फैज होगा नहीं होगा। अरे जहाँ बंदा है वहाँ आका की भी ये शान है। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? हमारा ईमान कहता है आप सही तरीके से बंदा बन जाएंगे तो फैजान इधर से फौरन और ये भी आप सुन लीजिए, लावारिस मत बनिए, किसी को अपना वारिस बनाइए। और हमारा फैसला सुनना चाहोगे तो बहुत पहले हमने इन्हें अपना वारिस बनाया। वसीले से, इनके वसीले से ख्वाजा भी हमारे वारिस है, गौसे आज़म भी हमारे वारिस है। अब एक बात आप जान लीजिए, जितने बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जिनकी विलायत मुसल्लम है, हर एक किसी न किसी पीर से किसी के आगे झुका हुआ है। आज कुछ मौलवी कहते हैं ये पीर क्या है, मुरीद क्या है, ये सब क्या है। तो आप यूं समझ लो जिनकी जहालत मुसल्लम है उन्हें पीर की जरूरत नहीं है, और जिनकी विलायत मुसल्लम है उन्हें पीर की जरूरत है। सुभान अल्लाह। हुजूर महबूबे इलाही, उनकी विलायत में क्या शुबहा, उनकी विलायत में क्या शुबहा, मगर बाबा फरीद के आगे झुके हुए हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की विलायत में क्या शुबहा, मगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आगे झुके हुए हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की विलायत में क्या शुबहा, मगर वो ख्वाजा अजमेरी के आगे झुके हुए हैं। ख्वाजा अजमेरी की विलायत में क्या शुबहा, मगर वो उस्मान हारूनी के आगे झुके हुए हैं। वही ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है कि जब वसाल हुआ तो इनकी पेशानी पे लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का हबीब, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से चला गया। मगर एक बात मेरे समझ में नहीं
नहीं आ रही है वो ये कि हबीबुल्लाह तो खिताब मेरे सरकार का है, मदीने वाले का है। दुनिया में हबीबुल्लाह सिर्फ एक है, आमिना का लाल है, मदीने के ताजदार है। इनकी पेशानी पे अगर कातिब तकदीर को लिखना था तो कुछ और खिताब लिख देते, कोई और बात लिख दी जाती। हबीबुल्लाह क्यों लिखा गया? तो उलमा कहते हैं दो गुरोह है, एक अंबिया की जमात है, एक औलिया की जमात है। अंबिया की जमात में हबीबुल्लाह मदीने वाले हैं और औलिया की जमात में हबीबुल्लाह अजमेर वाले हैं। अब एक बात और समझ लीजिए आप, वक्त बहुत कम है, बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी बातें कहनी है। मैंने जो आयत तिलावत की है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह। इसका माना यह है कि जो लोग मोमिन हैं, अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं, उन्हें तुम अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते ना पाओगे। उन्हें तुम अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती व मोहब्बत करते ना पाओगे। ये तो कह दिया गया। अच्छा एक बात सुनिएगा, जब कुरान ने कह दिया ना पाओगे, तब ना पाओगे, ना पाओगे। अब हम कहें कि अगर हम कहें कि अगर कोई ऐसा, तो अगर पकड़ क्या, जब कुरान ने कह दिया ना पाओगे। भाई अगर लाए क्यों, जब ना पाओगे तो ना पाओगे। अच्छा ठीक है, मेरा दिल कर रहा है, चलो ठीक है नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो दावा करते हैं, इतना तो कह सकता हूँ ना, मोमिन होने का दावा करते हैं। माना कुरान ने कहा कि ना पाओगे, ना पाओगे, ठीक है ना पाओगे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो होते नहीं, ये दावा करते हैं। ऐसा भी तो है जो मोमिन होने का दावा करे और वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करे, उसके बारे में क्या होगा? उसे मोमिन कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? मोमिन कहेंगे ही नहीं। तो कुरान ने जो बता दिया ना पाओगे, इसका मतलब जो ऐसा मिले वो मोमिन नहीं, जो ना पाए। जो मोमिन होगा तो ना पाओगे, और जहां पा जाओ समझ लो मोमिन नहीं है। ये आयत बता रही है। अच्छा ठीक है, मोमिन नहीं है, मान लिया मोमिन नहीं है, तो मोमिन नहीं है तो क्या काफिर है? कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। मोमिन नहीं है तो नफी में हो गया, है क्या ये बताओ? काफिर है। तो अब इस पर थोड़ी सी बहस करेंगे। एक दूसरी आयत ये आ रही है, दूसरी आयत कुरान की, वमन यतवल्लहु फइन्नहु मिन्हुम। जो बदमज़हबों से दोस्ती करे वो उन्हीं में से है। कुरान फरमाता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरे मेरे आका ने अगर सुलह कुल्ली कह दिया तो मिर्चे लग गई। कुरान क्या कह रहा है? जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से। कुरान तो और सख्त हुक्म लगा रहा है, कहाँ बच के जाएगा? पता क्या चला? कुरान का भी मिजाज वही है, शरीयत का भी मिजाज वही है कि जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का भी नहीं है। यहाँ तक तो बात ठीक है, चलो उन्हीं में से मान लिया, यानी काफिरों में से हो गया इसके जाहिर के मुताबिक। लेकिन थोड़ी दिक्कत यहाँ आ रही है, कुरान का 28वां पारा, कुरान के अंदर हाफिज लोग भी मौजूद हैं। मैं अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ, वो सुनिए, क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूँ। ये मैंने आयत पढ़ी, वमन यतवल्लहुम फइन्नहु मिन्हुम। जो उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से। वमन यतवल्लहुम मिन्हुम फइन्नहु मिन्हुम। तुम में से जो उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से है। तो कुरान ने कह दिया मोमिन नहीं, ये आयत कह रही है उन्हीं में से हो गया। उसने कहा, उस आयत ने कहा मोमिन नहीं, इस आयत ने कह दिया उन्हीं में से हो गया। यहाँ तक तो ठीक बात है, मगर प्रॉब्लम मुझे यहाँ आ रही है, वो आप भी सुनिए और उलमा मौजूद है वो भी सुने। कुरान फरमाता है, अलम तरा इलल लज़ीना तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम
ما ہوں منکم ولا منہم. سبحان اللہ. یہی تو حضرت فرماتے ہیں, یہی تو حضرت کا کہنا ہے. تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم. جو اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے وہ نہ ان میں سے ہے نہ تم میں سے ہے. وہ نہ ان میں سے ہے نہ تم میں سے ہے, نہ مومنوں میں سے ہے نہ کافروں میں سے. تو دوسرے نمبر کی آیت جو میں نے پڑھی وہ میں یتولہم منکم فإنہ منہم, یہ بتا رہی ہے کہ انہی میں سے, اور یہ آیت بتا رہی ہے نہ ان میں سے نہ تم میں سے. اور ایک بات یہ جان لو, قرآن میں اختلاف نہیں, قرآن میں ٹکراؤ نہیں. اگر یہ مانو گی تو یہ ایک الگ کفر ہے. لو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن فرماتا ہے, مطلب قرآن میں اختلاف نہیں, قرآن میں ٹکراؤ نہیں. اگر یہ مانے گا تو اس آیت کا انکار ہوگا اور کفر ہو جائے گا. قرآن فرماتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, ہم نے قرآن میں عوج نہیں بنایا. اللہ فرماتا ہے عوج مطلب تفسیر مدارک دیکھو, اے شیئا من العوج والعوج فی الاعیان کالعوج فی المعانی والعوج فی المعانی کالعوج فی الاعیان یقال فی رائه عوج وفی عصاه عوج والمراد نفی الاختلاف والتناقض. یہ عبارت تفسیر مدارک کی ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں, اور جب قرآن میں اختلاف نہیں تو دوسرے نمبر کی آیت کہہ رہی ہے انہی میں سے ہے, اور تیسرے نمبر کی آیت کہہ رہی ہے نہ ان میں سے ہے نہ تم میں سے ہے. تو سنو, ہم زیادہ دماغ نہ لگا کر کے اتنا تمہیں کہتے ہیں کہ تم چاہے اس میں سے ہو تب بھی دھاکہ ہے, چاہے نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو تب بھی دھاکہ ہے. یہ ہے نبی کے دیوانوں کے ساتھ آ جاؤ. اعلیٰ حضرت بولے تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف, پھر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے, ادھر کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بد ہے مگر انہی کے, سبحان بد ہے مگر انہی کے, باغی نہیں ہے ہم, باغی نہیں ہے ہم. اور نزدیک تو نہ کہ تیرے لیے یہ راہ پر خطر کی ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے, نبی کی محبت میں جلائے, نبی کی محبت میں اٹھایا. اچھا نہ ان میں سے ہے نہ ان میں سے ہے, نہ اتنا سمجھ میں آیا؟ بس ختم کر رہا ہوں. نہ ان میں سے ہے نہ ان میں سے ہے, نہ مومنوں میں سے نہ کافروں میں سے. تو کس میں سے ہے؟ تو یہ تو ہے. آپ بتاؤ, مومن و کافر ادھر سے بھی نہیں ہے ادھر سے بھی نہیں ہے, تو کدھر گیا؟ ہر ایک طریقے کہاں کونے میں کیوں؟ تو اب زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, قرآن ہی سے پوچھ لو. جب سب قرآن سے لیا ہے تو یہ بھی قرآن سے لیتے ہیں. قرآن تو بتا نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے, تو کدھر کا ہے؟ قرآن بولا موسم سبین بین سالک لا الہ الا ولا الہ الا, دونوں کے درمیان شقے میں ہے, یہ صحیح مذہب ہے, نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. قرآن فرماتا ہے, آج دیکھو اعلیٰ حضرت بولے ادھر ادھر کا نہیں ادھر کا ہے. یہی قرآن بھی کہتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. اگر میرا پیر کہتے سنا کلی تو آسمان اٹھا لو, دیکھ قرآن کیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, عرس غریب نواز, فیضان غریب نواز, پیغام مظہر اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے ادھر کے ہیں, ان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے جانتے ہو آپ؟ وہ بھی سن لو. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون.
यही लोग शैतान के गुरोह हैं, शैतान की जमातें हैं, और खबरदार शैतान की जमात ही घाटे में है। और वो लोग जो सच्चे मोमिन हैं, जिनके बारे में कुरान ने फरमाया कि पाओगे नहीं, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखते हैं, उन्हें दुश्मनों से दोस्ती करते ना पाओगे, ना पाओगे। अगर ऐसा है कि ना पाओगे, तब उनके बारे में कुरान फरमाता उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही लोग अल्लाह की फौज है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल फाइज़ून, अल्लाह के इज्जत की कसम, जो अल्लाह की जमात है वही कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हज़रत, आला हज़रत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। सरकार का हुक्म है और बोलो, लेकिन थक जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खुदा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। तो यही जमात कामयाब जमात है, ठीक है ना? और वही जमात, उसी जमात के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे? हाँ, इधर ना उधर जाइए, ना अधर में रहिए, इधर रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सरकार की मोहब्बत में जिलाए। आप देखो, मैदान बदर हो, मैदान उहद हो, कुरान फरमाता है लौकारू आबाहू और अबनाहू सुभान अल्लाह, और इख्वानहू बेशक, और अशीरतहू, सुभान अल्लाह, अगरचे वो उनके बाप ही क्यों ना हो, उनके बेटे ही क्यों ना हो, उनके भाई ही क्यों ना हो, उनके अजीजों अकारिब ही क्यों ना हो। आप तारीख देखिए तो जंगों में ऐसा मिलेगा, बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा, भाई ने भाई को मारा, दूसरे भाई ने भाई को मारा, रिश्तेदारों को मारा। ये क्यों मारा? इसलिए कि जो अल्लाह और रसूल से दोस्ती रखेंगे, उनको अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते ना पाओगे, अगरचे वो उनके बाप ही क्यों ना हो, ही क्यों ना हो। यही जंगे बदर है, जंगे बदर है या जंगे उहुद है। हजरते अब्दुल्ला उबैदा इब्ने जर्राह, जिनका नाम बताया जाता है, ये सहाबी रसूल है। इनके वालिद का नाम जानते हैं आप? इस्मुहु अब्दुल्ला, इस्मुहु अब्दुल्ला। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। उबैदा इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जर्राह, ये है वो इनके नाम का शजरा। उबैदा इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जर्राह, ये है ऐसा। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, मगर ये मंसूब है अपने दादा से, जर्राह से। उबैदा इब्ने जर्राह, उबैदा इब्ने जर्राह। वजह क्या है? ये बाप का नाम भी उससे काहे गायब हो गया? तो वजह ये है कि बाप गद्दार रसूल था। सुभान जंग में बाप की तलवार सामने आई, बेटा भी सामने आ गया, बेटा भी सामने आ गया। बेटा इस्लाम की हिफाजत करने गया है, नामूसे रसूल की आबरू बचाने गया है, और बाप इस्लाम के शजरे तैयबा को काटने गया था, नबी की अजमत पर हमला करने के लिए गया था। बाप और बेटे की तलवार टकराती है, बाप बेटे के तलवार के नीचे आ गया। बेटे ने, बाप ने कहा, एक तसव्वुर आया, एक ख्याल आया, एक वहम आया, तेरा बाप है। उधर से तसव्वुर हुआ मैं तेरा बाप हूँ। ये बेटा नबी का दीवाना है, याद रखिएगा। इस्लाम के अंदर हक और बातिल की पहचान ना खून से है, ना भाई से है, ना रिश्ते से है, ना बाप से है, अज़मत मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
زندہ باد سبحان حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ کی گردن کو کاٹ دیا، مار دیا، اور مار کر کے اعلان کیا اے لوگوں گواہ رہنا، آج سے میں اپنے باپ عبداللہ غدار مصطفیٰ کا بیٹا نہیں، اپنے دادا جرح سبحان اللہ بیٹا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔